is one other participant in the conference. The recording has started. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता मात ग्रह। આજે વર્તમાન કાળનું મહાસમર્થ આગમ એટલે કે સમયસાર એ શાસ્ત્રના ગુજરાતી અનુવાદક પંડિત રત્ન શ્રી હિંમતભાઈનો જન્મદિવસ છે. વર્તમાન કાળે મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ થયા. એક કુંકુંદાચાર્ય દેવના આગમોમાં સર્વોત્કૃષ્ટ આગમ સમયસાર. એ સમયસારનું નિમિત્ત પામીને વર્તમાન કાળના આપણા તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક એવા પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. પૂજ્ય ગુરુદેવની વાણીનું નિમિત્ત પામીને પૂજ્ય બેનશ્રીને સમ્યક દર્શન તેમજ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનની પ્રગટતા થઈ. એવા પૂજ્ય બેનશ્રીના બેનશ્રીથી મોટા 6 વર્ષે મોટા એવા ભાઈ પંડિત રત્ન હિંમતભાઈ, એમનો આજ જન્મદિવસ છે.
આપણે પણ સ્વાધ્યાયમાં સમયસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે. આ સમયસાર શાસ્ત્ર સાથે પંડિત શ્રી હિંમતભાઈની ઘણી બધી બાબતો સંકળાયેલી છે. એવા પંડિત હિંમતભાઈ, એમનો જીવન પરિચય શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટ સોનગઢે ઊંડા આદર્શ આત્માથી પંડિત રત્ન હિંમતભાઈ માટેનું આ એક પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું છે. એમના આધારે આપણે આજે પંડિત રત્ન હિંમતભાઈનું સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય એનો વિસ્તાર કરીને એમના જીવનમાં જે આદર્શ આત્માર્થીપણું હતું એવું આદર્શ આત્માર્થીપણું આપણને પણ પ્રગટ થાય એવી ભાવનાથી આજે એમનું વાંચન કરવામાં આવે છે. પુસ્તકનું નામ છે ઊંડા આદર્શ આત્માર્થી. એમાં ત્રીજા પેજ ઉપર સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય અપાણો છે. એનું હેડિંગ છે પંચ પરમાગમ એટલે ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવ રચિત સમયસાર, પ્રવચનસાર, પંચાસ્તિકાય, નિયમસાર અને અષ્ટપાહુડ આ 5 પરમાગમના અનુવાદક એટલે કે ભાષાંતર કરનાર એટલે કે આપણી ગુર્જર ભાષામાં, ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાંતર કરનાર કુંદ ભારતીના પનોતા પુત્ર ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવના હૃદયમાં રહેલા ભાવો ઊંડાણથી સમજીને ભાષાંતર કરી શકે એવા સક્ષમ ઊંડા આદર્શ આત્માથી પંડિત રત્ન હિંમતભાઈ હોવાથી એમને કુંદકુંદ ભારતીના પનોતા પુત્ર તરીકે વિશેષણ અપાયેલું છે. તો કે છે કુંદ ભારતીના પનોતા પુત્ર ઊંડા એટલા માટે લખ્યું છે કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્તિની જેમણે યોગ્યતા પ્રગટ કરી લીધી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવે કહ્યું કે હિંમતભાઈ તો નિકટ મોક્ષગામી છે.
ગુરુદેવે આ જે વાત કરી તે દિવસે પંડિતજીની ઘરે લાપસીના આંધણ કરાયા. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર જ્યારે જીવની પાત્રતા જઈને એમ કહે કે નિકટ મોક્ષગામી છે, તો એનાથી મોટું વિશેષણ કયું હોય? શું લખ્યું છે? ઊંડા, પછી આદર્શ. જો આપણે પણ આત્માર્થીપણું પ્રગટ કરવું હોય તો પંડિત રત્ન હિંમતભાઈનું જીવન જેવું હતું એને આદર્શ માનીને એનું અનુકરણ કરવા જેવું છે, માટે આદર્શ લખ્યું છે. આત્માર્થી જેમને આખું જીવન માત્ર આત્માની પ્રાપ્તિ માટે જીવન જીવ્યું, માટે એને આત્માર્થી શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. પછી લખ્યું છે પંડિત રત્ન વિદ્વાન, એને પણ પંડિત કહેવાય. શાસ્ત્રોમાં તો સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ પંડિત કહ્યા છે. ગુરુદેવે તો વિશેષણ આપ્યું જ છે કે નિકટ મોક્ષગામી છે. ગુરુદેવે તો કહ્યું છે કે અમારે તો સોનગઢમાં પંડિત એક જ છે, હિંમતભાઈ. પંડિત રત્ન શ્રી શબ્દ, શ્રી એટલે જ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી. હિંમતભાઈ દ્રવ્ય શ્રુતના જાણનારા. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ ગુરુદેવ માતાજીના હૃદયમાં રહેલું તત્વ, એના ભાવોમાં રહેલું તત્વ એને જેમ છે તેમ સમજનારા, એવા શ્રુતના જાણનારા હિંમતલાલ જેઠાલાલ શાહનો સંક્ષિપ્ત કહેવા જેવું તો ઘણું છે. કેટલું કહેવાય? એટલે એમ કે અમે થોડું લખ્યું છે, જાજુ કરીને વાંચજો. સંક્ષિપ્ત જીવન પરિચય. હવે એમનો જીવન પરિચય. અધ્યાત્મ યુગ પ્રવર્તક. અધ્યાત્મ એટલે જે શાસ્ત્રોમાં, જે ભાવોમાં આત્માને મુખ્ય રાખીને કથન કરાય એને અધ્યાત્મ કહ્યું છે. સમયસાર આદિ શાસ્ત્રો એ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. અધ્યાત્મ યુગ, યુગ એટલે 100 વર્ષ. ગુરુદેવે 78માં પરિવર્તન કર્યું, 78માં સમયસાર મળ્યું, 91માં પરિવર્તન કર્યું, 13 વર્ષે થયા. એ 13 વર્ષ દરમિયાન ગુરુદેવે સમયસારનો
સ્વતંત્રપણે સ્વાધ્યાય કરી અને એના ભાવો ક્રમે કરીને સમાજ સામે મૂક્યા. 91માં પરિવર્તન કરીને પૂજ્ય ગુરુદેવ સાધના ભૂમિ સોનગઢ માં 45 વર્ષ સાધના કરી 45 વર્ષ સમયસારની ધૂન ચાલી તો 13 ને 45 58 વર્ષ અને ગુરુદેવના દેવી લઈને લગભગ 44 વર્ષ થયા. હજુ સમયસારની ધૂન ચાલે છે. 100 વર્ષ કરતાં વધુ કાળ થયો. માટે યુગ કીધો. અધ્યાત્મ યુગ પ્રવર્તક 100 વર્ષથી ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે એની ધૂન આખા વિશ્વમાં ઊભી થઈ ગઈ. આ સમયસાર કોઈ અલૌકિક શાસ્ત્ર છે. આખા વિશ્વની નજર સમયસાર ઉપર પડી. એવી ધૂન મચાવનાર વર્તમાન કાળના તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક એવા પૂજ્ય ગુરુદેવ માટે એમ કહ્યું કે અધ્યાત્મ યુગ પ્રવર્તક. પછી કે છે ચિદાનંદ રસાસ્વાદી. ચિદ કહેતા ચૈતન્યમય એટલે કે જ્ઞાન, દર્શન અને સુખમય. જે આત્મા સ્વભાવથી જ્ઞાન, દર્શન અને સુખમય છે એમાંથી પ્રગટ થતા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખનો આસ્વાદ લેનાર એવા ચિદાનંદ રસાસ્વાદી એવા પૂજ્ય ગુરુદેવ રસબસતી વાણી છૂટી ગુરુદેવની. રસબસતી કહેતા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખથી ભીગી હુઈ વાણી. और कसदार वाणी, प्रयोजनभूत वाणी. बाद में लिखा है परोपकारी. परम उपकारी. परम उपकारी क्यों कहा कि गुरुदेव की जो अंतरंग वितरागता है उसका स्पर्श करके जो वाणी निकली वो दूसरे जीवों को भी वितरागता प्रकट करने में निमित्त बनती है. और जिसको पूज्य गुरुदेव के निमित्त से, उसकी वाणी के निमित्त से, उसकी अंतरंग वितरागता के निमित्त से एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो जीव सादी अनंत काल के लिए सुखी हो गया. तो हमारे गुरुदेव सादी अनंत काल के सुख देने वाले, तो सादी अनंत काल तक सुख देने वाले हैं, इसलिए परम उपकारी लिखा. बाद में लिखा पूज्य, जिसको
अंतरंग में वितरागता प्रकट जब होती है तब से वो जीव पूज्य हो जाता है। हमारे गुरुदेव के असंख्यात प्रदेश से अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख झरता है, टपकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव हमारे लिए पूजनिक है। तो पूज्य सद्गुरुदेव जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसे गुरु सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव श्री यानी ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिसको प्रकट रूप है, श्री यानी जिसको आत्मा की अनुभूति के काल में जिसका ज्ञान आत्मस्वरूप को जानता है और आत्मस्वरूप को जानकर सविकल्प दशा में आकर जिसकी वाणी छूटती है वो द्रव्य श्रुत है। तो भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत ज्ञान के धारक श्री शब्द इसलिए लगाया। गुरुदेव भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत ज्ञान के धारक कांजी स्वामी की कृपाभिनी पंडित रत्न हिम्मत भाई पर पूज्य गुरुदेव की कृपा दृष्टि थी। गुरुदेव तो तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव की जिस पर कृपा दृष्टि है, ऐसे बेनश्री और पंडित हिम्मत भाई जैसे जीव वो भी मोक्ष मार्ग और उसके फल को प्राप्त करने वाले हैं। कृपाभिनी पवित्र गुरुदेव को तो पवित्रता प्रकट रूप है, वितरागता प्रकट रूप है, शुद्धता प्रकट रूप है। तो गुरुदेव की कृपाभिनी पवित्र यानी वितराग आज्ञा पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दी कौन सी आज्ञा दी कि गुर्जर भाषा में भाषांतर करिए। जिसकी आज्ञा को ग्रहण करके झील के और स्वानुभव विभूषित अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से विभूषित जिसका आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख से रंजित है, ऐसे स्वानुभव विभूषित भगवती वैरागवंत पूज्य यानी जिसमें पूजनिकपणा प्रकट हुआ है। पूजनिकपणा प्रकट होता है जब प्रथम वितरागता प्रकटती है, तब से वो जीव पूजनिक है। तो माता जी तो स्वानुभव विभूषित है, आंशिक वितरागता प्रकट हुई है और गुरुदेव ने तो कहा उसके चरण में रहेंगे वो न्याल हो जाएगा।
उसके चरण में यानी उसकी आज्ञा में, उसके उपदेश की छाया में, उसके उपदेश की छाया में क्यों? तो कि जिसको अंतरंग वितरागता प्रकट हुई हो, ऐसा जीव की अंतरंग वितरागता दूसरे जीव की अंतरंग वितरागता प्रकट करने में निमित्त बनती है। तो पूज्य बेन श्री चंपा बेन की कल्याणी प्रेरणा से बेन श्री ने प्रेरणा की, कैसी प्रेरणा की? जिसमें पंडित जी का भी कल्याण हो और समयसार आदि शास्त्र पढ़ने वाले को भी उसका भी कल्याण हो। कल्याणी प्रेरणा से अध्यात्म विद्या के उत्कृष्ट ज्योतिधर, अध्यात्म विद्या, आत्मिक विद्या, आत्मा की प्राप्ति की विद्या, स्वानुभव की विद्या, जिसकी अवस्था प्रमत अप्रमत अवस्था है, अंत मुहूर्त काल में असंख्यात बार जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त करके आत्म स्वभाव में जम जाते हैं, जिसका फाट फाट पुरुषार्थ है, जो मुनियों के मुनि हैं, जो आचार्य है, जो महासमर्थ आचार्य है, मुनि संघ को दौड़ने वाले हैं, आगम के रचयिता है, जिसके पास महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश है, जिसने साक्षात सिमंदर भगवान तीर्थंकर भगवान की वाणी अपनी श्रुत लब्धि में अवधारण किया है, जिसने आत्मा के अनुभव के साथ वो वाणी को मिलाया है और आत्मा अनुभव के आधार स्तंभ पर आगमों की रचना की है, ऐसे अध्यात्म विद्या के उत्कृष्ट ज्योतिधर परम पूज्य ये तो मुनिराज है, आचार्य है, केवड़ी श्रुत कवड़ी के परिचय किया हुआ है, साक्षात सिमंदर भगवान का क्षायिकपणा देखा है, साक्षात सिमंदर भगवान के पास क्षायिक का स्वरूप सुना है, जिसकी भावना में क्षायिकपणा प्रकट करने की भावना है, अनेक रुद्धियों लब्धि के धारक है, जिसकी समर्थता आज भी है, आज भी उसकी समर्थता प्रसिद्ध है, ऐसे परम पूज्य श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव भावश्रुत द्रव्यश्रुत के धारक वैरागवंत, ऐसे आचार्य देव के महाकल्याणकारी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त हो सके ऐसी जिनवाणी समयसा शास्त्र में ऐसा निमित्त रूप सामर्थ है
कि दूसरे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बन सके। ऐसा महाकल्याणकारी समयसार आदि, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार ने अष्टपाहुड़ 5 वर्तमान में परमागम विद्यमान है। और ये 5 परमागम के आधार पर कुंकुंदाचार्य देव के बाद जितने आचार्य उपाध्याय साधु हुए, जो कोई श्रावक श्राविका अर्जिका या सम्यक दृष्टि हुए, और जिस कुंकुंदाचार्य देव की परंपरा के ज्ञानियों ने शास्त्र रचना की, वो सभी ज्ञानियों ने कुंकुंदाचार्य देव के शास्त्र के आधार से ही शास्त्र रचना की है। और सभी ने कुंकुंदाचार्य देव को अपने अपने शास्त्र में याद किया है। ऐसे ये 5 परमागम वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि कुंकुंदाचार्य देव ने 84 पाहुड़ों की रचना की थी, लेकिन वर्तमान में हमारा पुण्य इतना था कि इतने आगम विद्यमान है, लेकिन इतने आगम भी मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से निमित्त बन सकते हैं। तो देखो, ऐसे 5 परमागमों को अति भक्ति पूर्वक 5 परमागम यानी सरस्वती यानी जिन वाणी, जिन वाणी यानी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि यानी सिमंदर भगवान की साक्षात वाणी, सिमंदर भगवान की साक्षात वाणी भगवत कुंकुंदाचार्य देव चारण रुद्धि के माध्यम से भरत क्षेत्र से महाविद्य क्षेत्र जाकर महाविद्य क्षेत्र के 20 विरमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर, धर्म धुरंधर, अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, ऐसे सिमंदर भगवान के समोसरण में साक्षात वाणी सुनी और वो वाणी श्रुत लब्धि में ग्रहण करके अपने हृदय में समाकर आचार्य भगवान महाविद्य क्षेत्र से भरत क्षेत्र लाए और समयसार आदि शास्त्रों की रचना की। तो कहते हैं कि ऐसे 5 परमागमों उसके प्रति अति भक्ति पूर्वक भाववाही गुजराती अनुवाद करने का महान सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ है, वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य, उसके मार्ग प्रवर्तक, तीर्थ के वर्तमान, तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक और भविष्य के तीर्थंकर, ऐसे हमारे गुरुदेव
और ऐसे गुरुदेव का जो भविष्य का तीर्थंकरपना है, उसके भविष्य के गणधर ऐसे बेंसरी ऐसे बेंसरी के बड़े भाई वो पंडित रत्न हिम्मत भाई, उसको कुंकुंदाचार्य देव के मूल शास्त्रों के प्रति अति भाववाही, अति भक्तिपूर्वक, कोई ऐसा कहे कि पंडित जी को समयसार के प्रति इतनी भक्ति थी। अरे 30 साल की उम्र में समयसार की जो स्तुति बनाई, वो जो स्तुति में भाव भरा है 30 साल की उम्र में, ऐसे भाव तो स्तुति में तब आ सकते हैं कि समयसार आदि पंच परमागम के प्रति भक्ति भाव हो, तब ऐसी स्तुति की रचना हो सकती है। तो ऐसे पंच परमागमों के अति भक्तिपूर्वक भाववाही गुजराती अनुवाद करने का महान सौभाग्य जिसको यानी पंडित हिम्मत भाई को प्राप्त हुआ है, ऐसे पंच परमागमों का हार्द को प्रकाश करने वाले पूज्य बेंसरी के वडील बंधु इसलिए लिखा है कि बेंसरी से पंडित हिम्मत भाई 6 साल बड़े थे। बेंसरी का जन्म संवत 1970 में था और पंडित जी का जन्म संवत 1964 में था। तो जो हिम्मत भाई पंडित जी बेंसरी से 6 साल बड़े थे, इसलिए वडील बंधु लिखा है। वडील बंधु आदरणीय पंडित रत्न श्री हिम्मत भाई का शुभ जन्म के क्यों लिखा है कि जो व्यक्ति का जन्म हो और ऐसे जीवन में जो कार्य करे कि जिसमें स्व का भी कल्याण हो, पर का भी कल्याण हो, इसलिए शुभ जन्म लिखा। पंच परमागम का अनुवाद करने से पंडित जी को अपना तो कल्याण है ही, लेकिन उसका भाषांतर से अन्य जीवों का भी कल्याण है। तो ऐसा कार्य किया, इसलिए शुभ जन्म लिखा। शुभ जन्म सौराष्ट्र के वढवाण शहर में संवत 1964 श्रावणवद 14, आज श्रावणवद 14 है। श्रावणवद 14 तारीख 25/8/1908 को मंगलवार शुभ दिन हुआ था। उसके मातुश्री का नाम तेजबा, पिताश्री का नाम
जेठालाल भाई था। आज तो श्रावणवद आठम है। पंडित जी का जन्म श्रावणवद 14 के दिन हुआ है। अब आगे उसके कुटुंब में, पंडित जी के कुटुंब में प्रथम से ही सदाचार और धर्म का वातावरण तो था ही। जो पंडित जी का जन्म हुआ जेठालाल भाई के यहाँ, वो कुटुंब सदाचारी था। सज्जनता वाला जीवन था और घर में धर्म का भी वातावरण था। पिताश्री स्वभावतः सरल, शुद्ध, नैतिक जीवन वाले। क्या कहा? पिताश्री जेठाभाई जन्म से ही उसका जीवन सरल, शुद्ध, नैतिक जीवन वाला, अत्यंत प्रामाणिक और धर्म प्रेमी था। मातुश्री तेजस्वी, बुद्धि वाली, विशेष धार्मिक वृत्ति वाली और तीव्र पुरुषार्थी थी। क्या कहा? माताजी भी कैसी थी? तेजस्वी। घर के सभी सभ्य तेजस्वी, पिताजी, माताजी, भाई बहनें सब तेजस्वी, बुद्धि वाले, विशेष धार्मिक वृत्ति वाले और वीर्य वाले, यानी धर्म के प्रति पुरुषार्थ करने वाले। धार्मिक क्रियाओं में अच्छा रस था। ऐसे सदाचारी और धर्म प्रेमी कुटुंब में पंडित रत्न हिम्मतभाई का जन्म हुआ था। इसलिए जन्म से ही धार्मिक संस्कार थे। एक कुटुंब का परिचय दिया। अब पंडित जी का लौकिक शिक्षण। तो पंडित जी ने प्राथमिक तेमज माध्यमिक शिक्षा वढवाण में ली थी। स्कूल में अभ्यास में गणित यानी मैथमेटिक्स उसका प्रिय विषय था। पढ़ने में भी पंडित हिम्मतभाई तेजस्वी थे। तो उसकी बुद्धि प्रतिभा तेजस्वी होने से संवत 1981 यानी उस समय पंडित जी की उम्र 17 साल की थी। 17 साल की उम्र पर वो मैट्रिक परीक्षा में, उस टाइम मैट्रिक यानी 11th स्टैंडर्ड तक मैट्रिक बोला जाता था, तो मैट्रिक की परीक्षा में अहमदाबाद केंद्र में प्रथम आए थे। पूरे केंद्र में लौकिक एजुकेशन में मैट्रिक में प्रथम आए थे। हिम्मतभाई बचपन से ही बहुत विचारक
वैरागी, निर्माणी और सत्य के शोधक थे। क्या कहा? हिम्मत भाई छोटी उम्र से विचारक, यानी किसी भी बात हो तो चिंतन मनन करके निर्णय करना। वैरागी, संसार के प्रति उदासीनता। निर्माणी, कभी भी हिम्मत भाई के मुंह में से ऐसे शब्द नहीं निकले कि मैंने ये कार्य किया है। कभी भी समाज के पास कोई मान की अपेक्षा हो, ऐसा उसका जीवन में एक भी प्रसंग नहीं है। निर्माणी, सत्य के शोधक। सत्य के शोधक थे, इसलिए तो पूज्य गुरुदेव मिले। आगे बात आएगी वो। सत्य के शोधक थे। प्रथम से ही उसकी वृत्ति में धर्म की तरफ, उसकी वृत्ति धर्म की ओर थी। उसका जीवन धारा प्रवाह रूप, सिंपल, पवित्र, सत्य के आग्रही और धार्मिक था। ये सब सद्गुण पंडित रत्न हिम्मत भाई में थे। विचारक थे, वैरागी थे, सत्य के शोधक थे, धर्म की वृत्ति थी, जीवन सरल, पवित्र, सत्य का ही आग्रह रखना, सत्यवाद को डेप्थ में जाके समझना, जिज्ञासु, सत्य की परीक्षा न होवे तब तक स्वीकार नहीं करना, तब तक संतोष अंदर से नहीं होता था। सब बात को सर्व दृष्टिकोण से सोचना और उसके गहराई तक पहुंचना, उसके बाद निर्णय करना। स्वभाव से शांत थे, नम्र थे, विवेकी थे, गंभीर थे, निखालस थे, एकांत प्रिय थे, सिद्धांतवादी थे और सिद्धांत को दृढ़पणे पकड़ के रखना। पंडित जी कहते थे कि कोई करोड़ों रुपया सामने रखे तो भी सिद्धांत में चेंज नहीं करना चाहिए। तो सोचो कि जो जीव निकट मोक्षगामी होते हैं उसका बाह्य जीवन भी कैसा होता है। युवा अवस्था में पंडित जी कैसे थे और हम कैसे थे वो सोचना। युवा अवस्था से विचारक, वैरागवंत, निर्माणता,
सत्य के शोधक, धार्मिक वृत्ति, सिंपल जीवन, पवित्र जीवन, सत्य का आग्रह रखना, सत्य को गहराई से समझना, सत्य का निर्णय किए बिना आगे नहीं बढ़ना, अनेक दृष्टिकोण से हर बात को विचार करना, उसके बाद निर्णय करना, स्वभाव में उपशांता, नम्रता, विवेकता, गंभीरता, निखालसता, एकांत प्रियता, सिद्धांतवादी, सिद्धांत को पकड़ के रखना, अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। वो यानी पंडित जी ये पूरा जन्म वैरागी थे, पूरा जीवन ऐसा जीवन हो तो उसके लिए आदर्श शब्द प्रयोग किया है। ऊंडा, आदर्श, आत्मार्थी, उसके जीवन में ऐसा गुण है तो ऐसा जीवन को देखकर अपना जीवन भी ऐसा बनाना, इसलिए उसको आदर्श जीवन कहा। ये जन्म वैरागी थे, उसका चित्त वैराग से भीगा हुआ था। प्रथम से ही वैरागवंत पदों गाने में उसको रस था। अंतरंग में ऐसी भावना थी कि ये भव में आत्मा का कर लेना है। देखो, इसी भव में मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लूं, ऐसी भावना अंतरंग से कि मनुष्य जीवन मिला है। कुंदकुंदाचार्य देव के परमागम मिले हैं। वर्तमान गुरु और भविष्य के तीर्थंकर, ऐसे द्रव्य का योग हुआ है। और घर में भी ज्ञानी का जन्म हुआ है। वर्तमान बेनश्री और भविष्य के गणधर आचार्यों के आगम हो। वर्तमान सम्यक दृष्टि गुरु की कृपा हो। वर्तमान सम्यक दृष्टि बेनश्री की प्रेरणा हो। अगर ये भव में नहीं करूँगा तो कब करूँगा? तो अंदर से भावना थी कि ये भव में मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूँ, मोक्ष मार्ग प्रकट कर लूँ। ऐसी उसको तीव्र भावना वर्तती थी। उसकी मुख मुद्रा सदा गंभीर, सदा विचार मग्न, और जाहिर प्रवृत्ति में और बाह्य की धमाल में ये सब कार्यों से वो भिन्न रहते थे।
बाहर की प्रसिद्धि से दूर रहते थे। बाहर की प्रसिद्धि की उसको जरा भी इच्छा नहीं थी। अंतरंग का कार्य कर लूँ बस। बाह्य जीवन उसका नीरस था। अंदर से खेद था। कौन सा खेद था? कि ये जीवन आत्मा की प्राप्ति के बिना वैसे ही चला जाएगा क्या? ये भव में नहीं प्राप्त करूं तो किस भव में करूंगा, ऐसा अंदर से खेद था। बाह्य में सब प्रकार के निमित्त मिले, अंतरंग में ज्ञायक तो विद्यमान है। अब वर्तमान पुरुषार्थी करने का है। तो मैं ऐसा पुरुषार्थ कर लूं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। क्या यह मनुष्य जीवन मोक्ष मार्ग की प्रकटता के बिना चला जाएगा? इस अंदर से खेद था। इसलिए आत्म प्राप्ति की विचार की धुन में रहते थे। देखो, ये युवा अवस्था से शुरू करके आगे उसका जीवन प्रथम से ही साध्य लक्षी था। साध्य क्या था? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। साध्य क्या था? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। तो जीवन कैसा था? साध्य लक्षी। देखो, ये बात सीखने जैसी है। मैंने अभिषेक किया, पूजा किया, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय सुना, स्तुति की, भक्ति की, लेकिन साध्य को लक्ष्य में रख के किया कि साध्य का लक्ष्य रखे बिना किया? तो कि जीवन तो ऐसा होना चाहिए, साध्य लक्षी। और वो साध्य मोक्ष की प्राप्ति था। क्या था साध्य? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूरे दिन मुझे क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए प्रवृत्ति करना, वो साध्य लक्षी। इसलिए वो तत्व स्पष्ट करे और वैराग्य यानी उपशम दृढ़ करे, ऐसे धार्मिक शास्त्रों का वांचन करते थे। देखो, शास्त्र भी कौन सा पढ़ना चाहिए कि जिससे तत्व की निर्मलता हो, भाव की निर्मलता हो, कसायों शांत हो जाए, वैराग बढ़ जाए। तो शास्त्र भी ऐसा पसंद करना चाहिए। तो अभी समय हुआ है। मेरा ख्याल है कि जीवन परिचय 3 दिन चलेगा।
सब उसमें सहमत है तो 3 दिन यह विषय को पूरा कर ले, शुरू किया है तो ये हाँ जी, बिल्कुल जी, गुड आइडिया। हाँ बहुत सारो आइडिया છે રાજભાઈ, हाँ बहुत સારો આઈડિયા છે। हाँ तो 3 दिन ये चलेगा। वर्तमान 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્વર્ણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત રૂપ સર્વે જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। All participants are muted and they can unmute themselves. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। થેન્ક યુ વેરી મચ રાજભાઈ।